So today we'll start the topic of transfer of heat. Transfer of heat, basically heat को हमने क्या पढ़ा था? Heat is energy which shifts from one body to another due to temperature difference. कि अगर दो systems के बीच में temperature difference है, तो एक body से दूसरी body में, एक system से दूसरे system में जो energy जाएगी, that is heat energy. Body में जाके it changes into internal energy. तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हमने पढ़ना है कि हीट एनर्जी ट्रांसफर तो हमें पता है इट्स हैपेंस व्हेनेवर देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस. तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर इन थ्री वेज. मोड ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर तीन वेज लेते हैं. कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. सो इन तीन वेज में हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ. अब कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन बेसिकली टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स. जब आप हमारे पास एक दो सिस्टम्स है, एक का टेम्परेचर ज्यादा है एक का कम है, तो हाई टेम्परेचर मींस that molecules are vibrating more vigorously, they have more kinetic energy, and the electrons have more kinetic energy. So what happens is when a fast moving electron collides with low moving electron, it transfers the energy. कि हमारे पास जैसे एक हीटेड रॉड है, तो मेरे पास एक रॉड है, इसको एक एंड से हीट कर रहा हूं मैं. मैंने इधर इसको हीट अप करना शुरू किया. जब इसको हीट अप करना शुरू करूंगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, this starts vibrating more vigorously, the molecules will have larger kinetic energy. तो जब ये अपने neighbors के साथ collide करेंगे, they transfer the energy. There is no actual motion of particles. Actual motion नहीं है, सिर्फ collisions हो रही हैं. Collisions के through energy transfer हो रही है. So ये generally हम लेते हैं takes place in solids. This is the primary mode of heat energy transfer. So इसमें हम properties में लिख सकते हैं कि there is no actual motion of particles. No actual motion of particles. Energy transfer takes place through collisions. So mass is not transported. So energy transfer takes place through the collision process. Collisions where energy transfer हो रही है and it's a slow phenomenon. Slowly the energy is transferred unless steady state is reached. The whole of the rod will have some variation with temperature, but पूरी rod में हर end का temperature same हो जाएगा धीरे धीरे. This takes place mainly in fluids. अब फर्क क्या था? Conduction में there is no actual motion of particles. Convection में there is actual motion of particles. And this takes place generally due to the gravity. जैसे हमारे पास पानी है, हमने उसको हीट अप करना शुरू किया तो हॉट वाटर पार्टिकल्स वो उनकी डेंसिटी कम होती है, दे मूव्स अप. कोल्डर पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा है, दे मूव्स डाउन. सो देयर इज एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल. की गीजर में जैसे हम पानी को हीट अप करते हैं तो जो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हीट अप होते जाएंगे वो ऊपर चले जाएंगे, कोल्डर पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे. So there is actual motion of particles and this takes place due to gravity or difference in density. We say actual motion of particles is there. And this occurs because of difference in density with temperature. When I say fluids, it means gases and liquids. And this is also a slow phenomenon. But there is actual motion of mass from one end to the other end. Whereas radiation generally takes place in all three. It's possible in solid, liquids, gases, and it does not require even a medium. This is possible without medium also. अगर हमारे पास मीडियम नहीं भी है तो भी रेडिएशन के थ्रू होती है. सन से अर्थ तक जो लाइट आ रही है, हीट आ रही है, दैट इज थ्रू रेडिएशन.
So these are EM waves. Electric and magnetic field is associated with it. Travels with speed of light, and it's a fast phenomenon. And it's a fast phenomenon which takes place. So normally हम लेते हैं these are the three modes जिनके थ्रू हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन इनटू अदर. यू कैन आल्सो एक्सप्लेन अबाउट द पाथ. इस केस में जो पाथ होगा दैट विल बी इरेगुलर. Motion of particles is irregular path and radiations travel in straight line. So these are the three modes. So तीनों में फर्क पता चला. कंडक्शन में there is no actual motion of particles. आप एक एंड को रॉड के हीट अप करते हो मेटालिक रॉड को, उसके इलेक्ट्रॉन्स they starts vibrating more vigorously, molecules will have more energy. So when they collide with neighbors they transfer energy. फिर उनकी एनर्जी बढ़ेगी, they collide with their neighbors. So slowly energy is transported across the rod. तो जो एंड एक एंड आपने हाथ में पकड़ा हुआ था इसका टेम्परेचर ज्यादा है, धीरे धीरे दूसरे एंड का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा अनलेस अ स्टेडी स्टेट इज रीच्ड और टिल सम स्टेडी स्टेट इज रीच्ड. कन्वेक्शन में एक्चुअल मोशन हो रही है तो ग्रेविटी नहीं है तो कन्वेक्शन नहीं होगी बिकॉज डिफरेंस इन डेंसिटी के कारण है. तो जो पार्टिकल हॉट हीट अप हो रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं, जो कोल्डर पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ रहे हैं. जैसे रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर इज एट द टॉप, तो फ्रीजर के आसपास की एयर को अगर आप कूल कर दोगे वो नीचे आ जाएगा, नीचे से हॉट एयर ऊपर चली जाएगी. या वेंटिलेटर्स रोशनदान जो है छत के पास बनते थे बिकॉज जो हॉट एयर पार्टिकल्स हैं वो दे मूव अप एंड वेंटिलेटर से कोल्डर पार्टिकल मूव्स डाउन. रेडिएशन में इट्स इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. सो बेसिकली तीनों हीट एनर्जी ट्रांसफर के मोड है बट तीनों का प्रोसेस अलग अलग है. एक में एक्चुअल मोशन है, एक में एक्चुअल मोशन नहीं है. सो हमने तीनों को डिटेल में पढ़ना है. फर्स्ट इज कंडक्शन. अगर हम कंडक्शन की बात करें, थर्मल कंडक्शन, लाइक मेरे पास एक अगर मैं लूं कंटेनर है कोई, इसके दो एंड्स हैं, रॉड है जिसके दो एंड्स डिफरेंट टेम्परेचर है. इसकी लेंथ एल है बट इसके दोनों एंड्स का टेम्परेचर डिफरेंट है. क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. इस एंड का टेम्परेचर है T1, इस एंड का टेम्परेचर है T2 एंड मैं मान के चल रहा हूँ कि T1 T2 से ज्यादा. तो हीट एनर्जी हाई से लो टेम्परेचर फ्लो करेगी थ्रू कंडक्शन. क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर. क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये एरिया. So let it be A. Distance between two ends भी L. It was found experimentally कि जो heat energy transfer होगी, heat energy transferred is directly proportional to temperature difference between the two ends. दोनों ends के बीच में जितना ज्यादा temperature difference होगा उतनी ज्यादा heat energy transfer होगी. क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी. दोनों में डिस्टेंस जितना ज्यादा है, इसको अगर मैं x ले लूं तो उतनी कम हीट ट्रांसफर होगी. इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. So these are the factors on which, and it also depends upon time for which you allow. मतलब 10 सेकंड में जितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर होनी है 20 सेकंड में उससे ज्यादा होगी, 30 में और ज्यादा होगी. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हीट एनर्जी ट्रांसफर बढ़ती जाएगी. So combining all these you can say that or you can write as constant of proportionality को अगर हम k लें, you can say q is equals to negative sign signifies that heat energy flows from high to low temperature, increasing temperature की तरफ flow कर रही है. और differential form लिखोगे rate of heat energy transfer means dq by dt. dt by dx is called temperature gradient.
तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना कि किस रेट पे हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है. dt by dx is called temperature gradient of the conductor. थर्मल कंडक्शन में हम लेते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर कोलिजन्स के थ्रू हो रही है. कोलिजन्स के थ्रू हो रही है बट इट्स मेनली इलेक्ट्रॉन्स विच आर पार्टिसिपेटिंग. ये इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो कोलिजन्स होती है, हम लिखते हैं मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों है. मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, नेबर्स के साथ कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगी एंड इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी बढ़ेगी तो वो कोलाइड करेंगे. सो दोनों के कारण है. अब स्टेडी स्टेट ऑफ रॉड की अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि स्टेडी स्टेट आ जाती है थोड़ी देर के बाद. स्टेडी स्टेट का मतलब है कि मैंने एक कंडक्टर को हीट अप करना शुरू किया एक एंड से, थोड़े टाइम के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं रहता. तो इसको हम बोल देते हैं स्टेडी स्टेट आ गई. इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम कि किसी भी इंस्टेंट पे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है. ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज हमारे पास अगर रॉड है, इधर से हीट आ रही है, इधर से जा रही है, मैंने स्मॉल पोर्शन लिया, इसने ये हीटेड एंड से हीट ली और दूसरी तरफ रिलीज कर दी. तो जितनी हीट अगर वो रिसीव करेगा उतनी लूज भी कर देगा, तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है. हम कह देते हैं कि स्टेडी स्टेट आ गई है. और नॉन स्टेडी स्टेट में होता है कि अभी रॉड का टेम्परेचर वेरी कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स का. नॉन स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ ये वेरी करेगा. तो अगर नॉन स्टेडी स्टेट है तो टेम्परेचर वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और अगर स्टेडी स्टेट है तो टेम्परेचर विल नॉट वेरी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. के को हम लेते हैं, के टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. के को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन है थर्मल कंडक्टिविटी. के की जो वैल्यू होती है डिपेंड तो करती है टेम्परेचर पे, बट फॉर स्मॉल डिफरेंस इन टेम्परेचर अक्रॉस द टू एंड्स हम के को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं. Otherwise, we say it depends upon nature of material. कि नेचर ऑफ मटेरियल मतलब गुड कंडक्टर्स हैं तो के की वैल्यू ज्यादा होगी, बैड कंडक्टर हैं तो कम होगी. बट नॉर्मली हम लेते हैं के इंक्रीजेस स्लाइटली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. के इंक्रीजेस स्लाइटली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अदरवाइज हम जनरली पूरे चैप्टर में इसको कांस्टेंट ही लेंगे, अदरवाइज स्टेटेड नहीं है. अगर परफेक्ट कंडक्टर है अगर, तो के की वैल्यू इन्फिनिटी और इंसुलेटर के लिए 0. परफेक्ट इंसुलेटर इट इज 0. परफेक्ट इंसुलेटर है तो के की वैल्यू जो है इट विल बी 0. अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस. थर्मल रेजिस्टेंस इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस, और सारा कंसेप्ट इलेक्ट्रिकल एनालॉगस आप ले सकते हो. इलेक्ट्रिसिटी में आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगी, और रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट को आपने रेजिस्टेंस कहा था कि V इज इक्वल टू IR. तो R इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट. उधर था पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो कर रहा है, इधर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो कर रही है. तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज थर्मल रेजिस्टेंस. जैसे पहले था पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज की जगह हीट आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस आ गया. तो जो इनकी रेशियो होगी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, उसको हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस. टेम्परेचर डिफरेंस
means you can say it's T2 minus T1 and T1 minus T2 upon rate of flow of heat. So this is x upon Ka. इसको मैंने एनालॉगस टू जो आपने करंट में पढ़ा था, करंट में आपने पढ़ा था x इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाय आई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का फॉर्मूला आया था रो एल बाय रो वाज रेजिस्टिविटी, तो यहाँ कंडक्टिविटी है इसलिए डिनोमिनेटर में आ रहा है, अदरवाइज इट्स अ सिमिलर फॉर्मूला. इन कंसेप्ट्स आर आल्सो सेम. रॉड्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में था कि रॉड्स अगर सीरीज में है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सेम होता है, और अगर पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. इसमें भी सेम, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो रॉड्स पैरेलल में होते हैं, और अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम हो तो सीरीज में. सो अगर मैंने सीरीज में लगाया, सीरीज में रॉड्स को लगाया, मतलब अगर मैंने ऐसे लगाया, मेरे पास एक रॉड है, इसकी रेजिस्टेंस R1, इसके साथ एक और रॉड सीरीज में लगा दी, तो इसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू बोथ द रॉड्स इज सेम. Rate of flow of heat through both rods is same. Equivalent resistances. R1 plus R2. पैरेलल में अगर हम लगाएंगे, मतलब एक रॉड ये दो एंड्स हैं हमारे, दूसरी रॉड ये, हमने इनको पैरेलल में लगा, इसकी रेजिस्टेंस R1 R2, इससे इनका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है. पैरेलल में सिर्फ R1 एंड R2, और ये थर्मल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ रॉड्स. are in parallel. Equivalent is R1 R2 upon R1. मतलब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले थे वही इसमें लगे हैं कि सीरीज में इट्स सिंपली R1 plus R2, पैरेलल में इट्स R1 R2 upon R1 plus R2. पैरेलल में टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस रॉड्स इज सेम. Temperature difference across parallel conductors is same. Next इसमें एक important question आता है about growth of ice in a pond. Growth of ice in a pond का मतलब है कि अगर सर्दी पड़ रही है extremely cold countries में, मान लो मेरे पास देखिए लेक है या पॉन्ड है, इसकी एक टॉप लेयर फ्रीज कर दी है, बाहर का टेम्परेचर है -θ°C, 0 से कम है, और ये लेयर फ्रीज कर चुकी है, जिसकी थिकनेस x है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, नीचे भी पानी. तो पानी का टेम्परेचर यहाँ पे जो होगा दैट इज बिल्कुल लोअर मोस्ट पॉइंट. अगर मैं बात करूँ तो 4 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मिनिमम होती है, whereas जो इस लेयर आइस लेयर के नीचे दिस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो ये हाई टेम्परेचर है, बाहर -θ है, हीट लूज करेगा थ्रू दिस आइस. पानी से हीट निकलेगी, पानी से हीट निकलेगी, पानी 0 डिग्री पे है, उस पर हीट निकाली तो वो फ्रीज कर जाएगा. थोड़े टाइम में
हम लेंगे कि इसकी थिकनेस जो थी x से बढ़ के x प्लस डी एक्स होगी, मतलब ये थोड़ा सा पार्ट और फ्रीज कर, तो इससे एज वाटर लूजेस हीट, dq, thickness of ice layer increases by dx, मतलब dx पानी और फ्रीज कर गया। तो कितनी हीट रिमूव करें ताकि dx थिकनेस फ्रीज कर जाए? अगर थिकनेस dx बढ़ी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, तो जो वॉल्यूम फ्रीज किया दैट इज adx, और जो मास फ्रीज किया दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मतलब इतना मास फ्रीज कर गया, इतना मास फ्रीज किया, तो लेटेंट हीट अगर L है, एनर्जी रिमूव्ड इज dm into L, that means dq is a rho L dx. There is the heat energy removed, और ये heat remove कैसे हुई? Through the process of conduction, और conduction के through और in time dt, तो we can say that dq is equals to temperature difference theta thickness x into dp, इन दोनों को इक्वेट कर दो, बिकॉज हमने के लिया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन ऑफ आइस, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो हीट एनर्जी ट्रांसफर मतलब के ए डेल्टा टी बाई एक्स इनटू टी, नेगेटिव साइन से डायरेक्शन बताता है, सो हमें अगर इन दोनों को इक्वेट करें, एक आंसर, मतलब कितने टाइम में थिकनेस बढ़ेगी, दैट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, dt can be written as time to increase thickness from x to x1 to x2, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, this is the time needed to increase the thickness from x1 to x2. So these are the main formulas जो आपको कंडक्शन में आने चाहिए, और इसके बेस पर फिर you can do the numericals. Like if you do next test, you see this numerical. However, तीन identical rods हैं, three identical rods, each of length 1 meter, having cross-sectional area 1 centimeter square, and made of aluminium, copper, and steel, respectively at 12, 14, and 50 and 4 डिग्री सेल्सियस। हमें कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी दी है 400, एल्यूमिनियम की 200 और स्टील की 50। तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, बिकॉज आर का अगर हम फॉर्मूला देखें, L upon K, मतलब इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। तो इसकी बिकॉज अगर रेशियो देखो, ये 50 है, ये 4 टाइम्स 50 है, 8 टाइम्स 50 है, तो रेजिस्टेंस भी इसी रेशियो में होगी। अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस ले लेता हूँ R, इसकी रेजिस्टेंस अगर लेता हूँ फिर जिसकी सबसे कम है, अगर इसको मैं ले लेता हूँ से R, तो ये हो जाएगी R/2, ये हो जाएगी R/8, यहाँ ऑपोजिट कि आपने इसको अगर R ले लिया तो इनकी रेजिस्टेंस कम होगी, ये R/2 हो जाएगी, ये R/8 हो जाएगी। तो बेसिकली R is inversely proportional to K,
अगर मैं रेशियो लूं कॉपर टू एल्यूमिनियम टू स्टील, तो इट्स 1:4:8। स्टील की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। अब इसको ऐसे समझो, इसका टेम्परेचर 50, इसका टेम्परेचर कुछ एज्यूम कर लिया, लेट इट बी थीटा। यहां से हीट आई, कुछ इधर चलेगी, कुछ इधर चलेगी, तो हमने थीटा बताना है कितना होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जंक्शन इज नॉट प्लेस टू स्टोर हीट। यहां से जो हीट आएगी वो कुछ इधर गई, कुछ इधर गई। दैट मीन्स हीट फ्लोइंग थ्रू स्टील is equal to heat flowing through copper and heat flowing through aluminum. तो कुछ कॉपर में से फ्लो कर गई, कुछ इसमें से कर गई। अब कितनी हीट फ्लो करेगी दैट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। स्टील की रेजिस्टेंस 8R है, टेम्परेचर डिफरेंस है 50 माइनस थीटा अपॉन 8R। कॉपर के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस है 4, रेजिस्टेंस है R, और एल्यूमिनियम के क्रॉस थीटा माइनस 4। यू गेट So then solve for then this is 50 minus theta by 8. And you can say 50 minus theta, 8 theta minus 32 plus 2 theta minus 24. So you can check the calculations, make sure or not. 32 plus 24. So maths maybe you can just check if there is an error and you can find it.